Good morning, everyone. In the previous class, we had completed the chapter of bank reconciliation statement. Any doubt in that? No, sir. Okay. So today we'll begin with the chapter depreciation. What do we mean by depreciation? हमने accounting terms में पढ़ा था, है ना? क्या होती है depreciation? The gradual and permanent decrease in in the value of fixed assets. Okay. Sahaj, do you want to add something to this? One more word I'm looking for. Prishita said gradual and permanent decrease in value of fixed assets. Do we need to add something to it? Sir, it should be fixed tangible assets. Very good. Tangible word also needs to be added. So what Prishita said is 95% correct. So depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of fixed tangible assets. ठीक है, नॉट इंटेंजिबल. इंटेंजिबल के लिए हम अलग टर्म यूज करते हैं. क्लियर? Yes, sir. Okay. Now let us discuss features or characteristics of depreciation. Depreciation is fall in the value of fixed tangible assets. इसका हमने जब अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्कस किया था, एक एग्जांपल लिया था. सपोज आप आज एक कार खरीदते हो 6 लाख रुपीस की, ठीक है. इफ यू वांट टू सेल इट आफ्टर 1 year, लेट अस से, और इवन आफ्टर 1 month, will you be able to get 1 lakh rupees, 6 lakh rupees for it? No, sir. No. Why not? Sir, because it has been used and sir, that's why its value will depreciate. Very good. With its use, with the passage of time, because of many other factors, its value has decreased over a period of time. So this reduction in the value is called depreciation. Gradual and permanent decrease in the value of fixed tangible assets. First characteristic, depreciation is the fall in value of fixed tangible assets, except land. Why except land? Because in case of land, generally the value increases instead of decreasing. ठीक है? Although क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो लैंड पे भी डेप्रिसिएशन लगानी है तो लगानी है, लेकिन प्रैक्टिकली जनरली और कई बार वैल्यू कम भी हो जाती है लैंड की, बट दैट इज रेयर. Generally the value of land appreciates, it increases, it does not depreciate. Why? Sir, because demand is more than the land available. Very good. Because the demand of land keeps increasing. As the population keeps increasing, more and more people require more and more land to live, to build their homes, to set up their factories, to run their business, to make their shops. So for all these purposes, the demand for land keeps on increasing. But what about the supply? The Sir, it is supply. same. Yes, Romil. Sir, the supply is same. Supply is same. In fact, if we think carefully, the supply is declining. Why is it declining? Global warming. The water level in the oceans is going up, in the seas is going up. Coastal land areas are getting submerged in water slowly. So supply of land is reducing, but demand is increasing. So generally the value of the price of land or the value of land appreciates. In all other fixed tangible assets, there is depreciation, but generally in case of land, it is not there. But still,
if the question asks you to charge depreciation on land also, you will. Clear? Yes. Yes, sir. Second feature, depreciation is a decrease in the value of a permanent nature. ये ऐसा डिक्रीज नहीं होना चाहिए जो अभी डिक्रीज हुआ है तो कल को बढ़ भी सकता है. दिस इज अनदर रीजन कि लैंड पर हम डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज करते, क्योंकि लैंड की वैल्यू अगर कभी किसी वजह से कम हो भी जाए तो उसके पूरे चांसेस रहते हैं कि फ्यूचर में फिर से बढ़ जाएगी. तो जिस चीज की वैल्यू टेम्परेरीली डिक्रीज हुई है, फ्यूचर में फिर बढ़ने के चांसेस हैं, उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज या डेप्रिसिएशन नहीं लगाते. क्लियर? Yes, sir. Yes. So it is decrease of a permanent nature, not a temporary nature. Depreciation is a gradual and continuous process. Gradual means? So which is continuously, slowly happening. Yes, slow and continuous. So it is a slow and continuous process. Value एकदम से overnight नहीं decrease हो जाती, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम होती रहती है continuously. Charging depreciation is process of allocation of cost of an asset to its estimated useful life as per the matching concept. Matching concept क्या कहता है? Revenues of current year should match with the expenses of the current year. Yes, those expenses should be taken as expenses of current year which are related with the revenue generation of current year. ठीक है? अब आपने कोई गुड्स खरीदे, वो सेल हो गए, तो वो परचेज एक्सपेंस शो कर दिया. उसमें भी हम क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं. क्यों लेस कर देते हैं? क्योंकि वो इस साल के रेवेन्यू से मैच नहीं करता. ठीक है? स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी को एज एन एक्सपेंस दिखा दिया क्योंकि विद इन 1 ईयर जनरली वो यूज हो जाती है, तो इसी करंट ईयर के रेवेन्यू जनरेशन में यूज हो गई. ठीक है? लेकिन ये तो हो गया करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स जनरली सेम ईयर में कंज्यूम हो जाते हैं. अगर बच गए कुछ ईयर के एंड में तो उनको हम एक्सपेंस में से लेस कर देते हैं और एसेट्स में स्टॉक की फॉर्म में दिखा देते हैं. लेकिन फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी खरीदी सपोज 10 लाख रुपीस की, अब ये 10 लाख की मशीन और सपोज 10 ईयर्स की उसकी लाइफ है. ठीक है? तो पूरे 10 लाख एक ईयर में तो यूज नहीं हो जाएगी ना, 10 साल तक चलेगी. तो हम इसका 10 लाख का पेमेंट तो फर्स्ट ईयर में ही दिखा देंगे जिस साल खरीदी, लेकिन 10 लाख का एक्सपेंस कौन से ईयर में दिखाएं? फर्स्ट ईयर में दिखाएं जब खरीदी है, या लास्ट ईयर में जाके दिखाएं 10th ईयर में जब बिल्कुल वैल्यू उसकी जीरो के करीब पहुंच गई है. Its value will be spread over all the years. वेरी It गुड, has been used. वेरी गुड. तो उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? स्प्रेड कर देंगे. लेट अस से 1 लाख पर ईयर, तो 10 साल में 10 लाख वैल्यू उसकी राइट ऑफ हो जाएगी, एक्सपेंस शो हो जाएगी. तो जब हम किसी फिक्स्ड एसेट की कुछ कुछ वैल्यू हर साल एज एन एक्सपेंस दिखाते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना और कुछ नहीं है, उसकी कॉस्ट को यूजफुल लाइफ के ओवर एलोकेट करना है. आई रिपीट, charging depreciation is nothing else but the process of allocation of cost of fixed asset over its useful life over a number of years. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Depreciation decreases the book value of the asset, not necessarily the market value. ठीक है? सपोज अभी जो हमने एग्जांपल लिया, 10 लाख की एक मशीन खरीदी, 1 लाख पर ईयर वी आर शोइंग इट्स डेप्रिसिएशन. तो फर्स्ट ईयर में हमने शो किया 1 लाख वैल्यू रिड्यूस हो गई, अब कितनी वैल्यू रह गई? 9 lakh. Yes, at the end of first year, now value is 9 lakh. But if you actually try to sell that machine in the market,
It may fetch you exact 9 lakh rupees, means market value is same as book value. It may fetch you 8 lakh rupees, means market value is less than book value. Or sometimes it may fetch you, let's say 9,20,000 rupees, more than book value, market value being more than book value. So market value can be different. Market value we will come to know only when we try to sell the asset. Right? By charging depreciation, which value is reducing? The book value. Book value means हमारे accounts की books में, यानी हमारे accounts में उसकी value जितनी है, that is called book value. So depreciation decreases the book value of the asset. Clear? Yes. The market value may be the same, may be less, may be more than the book value. The term depreciation is used only in respect of fixed tangible assets. What are tangible assets? Which can be Can be touched. seen and touched. Which can be seen and touched. एक वेस्टिंग एसेट्स भी होते हैं. वेस्टिंग एसेट्स कौन से होते हैं? The non-renewable resources. Very good. Non-renewable resources like mines, oil wells. तो वेस्टिंग एसेट्स के लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन. कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ नाम अलग है. तो वेस्टिंग एसेट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं कौन सी? Depletion. Depletion in place of depreciation. Similarly, for intangible assets, what are intangible assets? Which cannot be seen and touched. Like goodwill, patents, trademark. Copyright. ठीक है, इनकी वैल्यू भी कम होती है. इनकी वैल्यू जब कम होती है, अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम बट द नेम इज डिफरेंट. इट इज कॉल्ड amortization. क्या कहते हैं? Amortization. So in case of fixed tangible assets, the term used is Depreciation. in case of wasting assets, the term used is Depletion. in case of intangible assets, the term used is Amortization. Amortization. very good. Now we come to causes of depreciation. Okay. What are the reasons because of which depreciation occurs? The value decreases. One is by constant use. किसी भी चीज को हम यूज करते हैं तो उसके पार्ट्स घिसते हैं. ठीक है, जिसे हम कहते हैं वियर एंड टियर. वियर एंड टियर टर्म आई क्लोथ से. एक कपड़े पहनेंगे तो पहनते पहनते कहीं से फट जाते हैं, कहीं से घिस जाते हैं, तो वहां से टर्म आई कि उस वजह से उनकी वैल्यू कम होती जाती है. बट इन जनरल when we use this term wear and tear, it applies to all fixed assets, all fixed tangible assets. And what does it mean? The reduction in the value of asset because of its parts getting worn out by its use. यूज करने से जो उसके पार्ट्स घिसते हैं उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है. दैट इज depreciation due to constant use. Clear? Yes. Yes. That is the main reason of depreciation, the foremost reason of depreciation. But it is not the only reason. There are other reasons also. By expiry of time. Suppose आप एक ब्रांड न्यू कार खरीद के लाए और आपने उसे अच्छे से कवर करके गोडाउन में रख दिया. 1 साल तक आपने उसे यूज ही नहीं किया. 1 साल बाद आप बेचने जाओगे, क्या आपने जितने में खरीदी थी उतना या उसके आसपास कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी? No, sir. नहीं मिलेगी, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम भी उसकी वैल्यू कम होती जाती है. ठीक है, जब कोई व्हीकल, कार, बाइक, स्कूटर वगैरह कुछ भी आप बेचने जाओ तो बायर जो है सबसे पहले ये पूछता है कौन से ईयर का मॉडल है, मतलब कौन से ईयर में आपने खरीदी थी. ठीक है,
तो with passage of time also value keeps declining. Third is by obsolescence. Obsolescence का क्या मतलब होता है? Any So idea? something is outdated. Yes, very good. Something becoming outdated. When and how does something become outdated? So new models keeps coming in, new features. Yes, very good. When new More machine features, gets. yes, when new features, new models, new technology comes, the previous technology, the previous model becomes outdated comparatively and its value reduces. जैसे ही किसी फोन का, किसी कार का, किसी लैपटॉप का नया मॉडल आ जाता है तो पुराने वाले मॉडल्स की वैल्यू एकदम से फॉल हो जाती है. Why? Because they have become comparatively obsolete, outdated. Clear? Yes. Fourth reason can be permanent fall in market value. अगर किसी चीज की मार्केट में वैल्यू परमानेंटली फॉल हो गई किसी वजह से, मे बी वो चीज आउट ऑफ फैशन हो गई है, या एक इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड सर्टेन चाइनीज एप्स, राइट? इवन बिफोर द गवर्नमेंट बैंड, बिकॉज ऑफ द tension between the countries at the border, because Chinese forces tried to encroach upon Indian areas. Because of that sentiment against China, many people have stopped using Chinese products, stopped buying Chinese products. तो Chinese products की market value एकदम से fall हो गई है उसकी वजह से. Have you noticed this? Have you observed this? Yes, sir. Yes, sir. तो वो भी एक रीजन हो सकता है डेप्रिसिएशन का. क्लियर? Yes, Yes. sir. तो अगर आपके पास कोई चाइनीज मेड कोई फिक्स्ड एसेट था, मेड इन चाइना, तो आज की डेट में अगर आप उसे बेचना चाहो तो उसकी वैल्यू बाकी फैक्टर्स के अलावा इस फैक्टर की वजह से भी कम हो जाएगी. Because many people will not be interested in buying that thing at all. Now, why is there a need of providing depreciation? अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, causes और need में. Causes है depreciation होती क्यों है, मतलब वैल्यू फॉल क्यों होती है. नीड में हम बात कर रहे हैं कि हमें अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन शो करने की जरूरत क्यों है. क्लियर? Yes. First point, for ascertaining true profit or loss. Depreciation, as we discussed, is a business expense. जितने estimated value का वो fixed asset during the year use हो गया है, उसे हम शो करते हैं as depreciation expense. अगर हम नहीं शो करेंगे, इसका मतलब हम अपना एक एक्सपेंस दिखाई नहीं रहे, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा जबकि ज्यादा होगा नहीं. ठीक है? सो इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट ट्रू प्रॉफिट और लॉस. ऑल्सो फॉर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलती है? Balance sheet. यस, बैलेंस शीट से. बैलेंस शीट अगर हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई तो फर्स्ट ईयर के एंड में भी हम 10 लाख ही दिखा रहे हैं मशीन की वैल्यू, सेकेंड ईयर के एंड में भी 10 लाख दिखा रहे हैं, एंड सो ऑन, विच इज रॉन्ग. क्योंकि अब उस मशीन की उतनी वैल्यू है ही नहीं, तो हम इनकरेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहे होंगे. तो इसलिए सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी जरूरी है. थर्ड, टू ascertain ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे वो कॉस्ट का पार्ट होते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. सो इफ वी डू नॉट शो one of these expenses, that means we will be showing lesser than actual cost. Clear?
Yes. Yes. Now, this next point is interesting, to provide funds for replacement of asset. आज आपने एक 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ठीक है, 10 साल की उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, 10 साल बाद आपने उसे रिप्लेस करना होगा, मतलब नई मशीन खरीदनी होगी, क्योंकि ये यूजलेस हो जाएगी, ऐसा आप एस्टिमेट कर रहे हो तब तक। तो उस नई मशीन के लिए फंड्स प्रोवाइड करेगी डेप्रिसिएशन। ये बात कुछ समझ में आ रही है, कैसे प्रोवाइड करेगी डेप्रिसिएशन फंड्स? If we will not depreciate it, so when its useful life will end, we will be assuming that we have that amount for the machine. वेरी गुड। और वो अमाउंट हमें मशीन का मिलेगा नहीं, एक तो ये रीजन है, ठीक है। दूसरा रीजन, अब इसका थोड़ा समझते हैं टेक्निकली। लेट्स टेक एन एग्जांपल। Is this blank screen visible? Yes, sir. Okay. Suppose हमने मशीन एक खरीदी 10 लाख की, ठीक है, हमारे पास और 10 इयर्स की उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, तो पर ईयर लेट अस से डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हम एस्टिमेट कर रहे हैं 1 लाख रुपीस। यहां तक क्लियर? Yes, sir. Now suppose profit before depreciation, after charging all other expenses, but without, before charging depreciation, profit is, let us say, 5 lakh rupees per year. How much? 5 5 lakh. lakh rupees per year. Per year, ठीक है। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, ये 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट कहां पर जाएगा? कैपिटल में, Balance sheet. Capital में ऐड हो जाएगा। और ओनर सपोज जितना भी प्रॉफिट ऐड होता है उसके कैपिटल में, ओनर साथ के साथ उसको ड्रॉइंग्स कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो सपोज अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में बैंक बैलेंस है, ये मशीन खरीदने में 10 लाख रुपए लग गए, अब बैंक बैलेंस है हमारा लेटस से बचा हुआ 1 लाख। कितना? 1 lakh. 1 लाख। अब 10 साल तक 5-5 लाख प्रॉफिट होता रहा, बाकी सारे एक्सपेंस लेस करके, पर डेप्रिसिएशन हमने लेस नहीं किया, तो 5 लाख का प्रॉफिट होता रहा और हम उस प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करते रहे, ओनर उसे विड्रॉ करता रहा। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? 5, सपोज सारी सेल परचेज सब कैश है, ठीक है, तो 5 लाख के प्रॉफिट का मतलब है कि 5 लाख रुपए आपका बैंक कैश और बैंक बैलेंस बढ़ा। यस और नो? Yes. ठीक है। और जैसे ही वो प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, ओनर ने विड्रॉ कर लिया, तो 5 लाख कैश और बैंक बैलेंस वापस कम हो गया, तो बैंक बैलेंस वापस कितना पहुंच गया? 1 lakh. 1 लाख। तो इस तरह से करते करते हर साल ऐसा ही होता जा रहा है, और 10 साल के एंड में बैंक में वही 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब नई मशीन खरीदनी है 10-12 लाख रुपए की, तो पैसे कम पड़ गए, फर्म के पास पैसे नहीं है, कैसे खरीदें? ये हो गई सिचुएशन 1। क्लियर? Yes. अब आते हैं सिचुएशन 2। हर साल के 5 लाख के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस करी 1 लाख, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट कितना बचा? 4 lakh. 4 लाख। तो कैपिटल में कितना प्रॉफिट गया? 4 lakh. 4 लाख। मतलब 5 लाख की अब डेप्रिसिएशन में एक्चुअली हम किसी को कैश तो नहीं दे रहे ना, डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज कर रहे हैं इट इज नॉट अ कैश एक्सपेंस, किसी को हम पेमेंट तो नहीं कर रहे ना ये 1 लाख रुपीस की। No, sir. सो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, सारी सेल परचेज सब कुछ कैश बेसिस पर है, तो इसका मतलब बैंक कैश और बैंक बैलेंस 5 लाख रुपए बढ़ गया।
उसके बाद प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर हुआ कितना, 4 लाख, ओनर ने विड्रॉ कर लिया, तो बैंक और कैश बैलेंस बड़ा कितना था, 5 लाख 5 लाख, और कम कितना हुआ उसकी ड्रॉइंग्स के बाद, 4 लाख 4 लाख। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में अब बैंक बैलेंस कितना हो गया, 2 lakh. 2 लाख हो गया, है ना, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. फिर नेक्स्ट ईयर के एंड में 3 lakh. lakh. 3 लाख। इस तरह से करते 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 10 इयर्स के एंड में कितना हो जाएगा, 10 lakh. और ये 10 लाख हम यूज करेंगे नई मशीन खरीदने के लिए। आई बात समझ में। Yes, sir. So indirectly depreciation is providing us with funds for replacement of asset. Why? Because depreciation is a non-cash expense. Actually ये 1 लाख रुपए या जो भी अमाउंट है डेप्रिसिएशन का कहीं जा नहीं रहा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में ही रखे हैं वो पैसे, लेकिन ओनर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि उसके कैपिटल में वो ट्रांसफर नहीं हुए। ठीक है, सो बाय रिटेनिंग this amount in the cash and bank balance of business, depreciation helps in providing funds for replacement of asset. Clear? Yes, sir. Fifth point, for avoiding overpayment of income tax. अगर हम depreciation का expense नहीं दिखाते तो एक expense ना दिखाने से हमारा profit कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो बढ़े हुए प्रॉफिट पे फिर हमें इनकम टैक्स भी ज्यादा पे करना होगा क्योंकि इनकम टैक्स प्रॉफिट पे लगता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अगर हम दिखाते हैं तो हमारे सारे एक्सपेंस हमने ठीक से दिखाए तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसी पे इनकम टैक्स लगेगा। अगर हमने डेप्रिसिएशन नहीं शो किया तो जो एक्चुअली जितना प्रॉफिट है नहीं है कम, लेकिन टैक्स ज्यादा पे लग जाएगा। Getting this point? Yes, sir. Okay. Now we come to methods of calculating depreciation. As we said, अभी एक छोटा सा एग्जांपल लिया था हमने, 10 लाख की मशीन खरीदी, 10 लाख की एस्टिमेटेड लाइफ है, तो हर साल 1-1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, मान लो उसकी। एक्चुअली कितने वैल्यू का एसेट यूज हो गया है किसी ईयर में, उसे एग्जैक्ट वैल्यू को पता लगाना इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल। आपने एक कार खरीदी, एक साल में कितने वैल्यू की कार आपने यूज कर लिया आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। कितने उसके पार्ट्स घिस गए हैं, कितने वैल्यू के, कितनी उसकी टाइम वैल्यू, टाइम पैसेज की वजह से वैल्यू कम हो गई है। एग्जैक्ट अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन, वी कैन ओनली एस्टिमेट। तो वो एस्टिमेट करने के देयर आर वेरियस मेथड्स, out of which 2 methods are in our syllabus. One is straight line method, the other is written down value method. So first is straight line method. All लिख लो ये साथ साथ। अब straight line method, heading लिखो methods of calculating depreciation. First लिखो straight line method oblique fixed installment method oblique original cost method oblique equal installment method। ये एक ही मेथड के इतने सारे नाम हैं, तो इनमें से कोई भी नाम दिया हो मतलब सेम है। Written. अब इसका फॉर्मूला लिखो, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ।
Sir, written. आगे लिखो, कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूड्स ऑल इनिशियल एक्सपेंसेस incurred to make the asset usable. So that are capital expenditure. Yes, exactly. ये हमने जर्नल के चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी कोई हम एसेट खरीदते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करके लाने का खर्चा, उसे इंस्टॉल करने का खर्चा, अगर उसे कुछ रिपेयर करवाना पड़ता है यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए, उस रिपेयर का खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू यूजेबल फॉर्म are part of the cost of the asset, so they are debited to the asset account only. Sir, written. Written? Okay. Now, let's take an example. A machinery is purchased for rupees 20 lakh and at the end of its estimated useful life of 10 years. Useful life उसकी हमने estimate करते हैं, ये भी exact नहीं बता सकते हम कब तक चल जाएगी, estimate करते हैं, is 10 years. Its estimated scrap value, scrap value मतलब कि 10 years के end में अगर हम उसे बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा ना. स्क्रैप मतलब रद्दी, कबाड़. तो रद्दी वाले को भी अगर बेचेंगे तो उसकी क्या वैल्यू हमें मिलेगी. ठीक है, दैट इज, वो भी एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी स्क्रैप वैल्यू आज की डेट में एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. सो एस्टिमेट करते हैं वो भी. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 3 लाख. इसका मतलब हमें इस मशीन की कॉस्ट कितनी पड़ी, 20 लाख हमने आज खर्च किए, 10 साल बाद हमें 3 लाख मिल जाएंगे स्क्रैप बेच के इसका, तो नेट हमें कितनी वैल्यू पड़ी, इसकी कॉस्ट पड़ी. $17 lakh. 17 लाख एग्जैक्टली. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसीलिए न्यूमरेटर में हमने लिखा है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी इस मेथड से, 20 lakh which is the original cost minus 3 lakh which is the estimated scrap value divided by 10 years is the useful life. So per year depreciation is rupees 1,70,000. Clear? Yes, sir. Now we come to rate of depreciation. Rate of depreciation लिखो is equal to annual depreciation upon cost of asset into 100. अभी ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन आई 1,70,000, कॉस्ट है 20 लाख, मतलब हर साल हम 1,70,000 रुपीस की डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20 लाख कॉस्ट वाले एसेट पे, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ 1,70,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100, ये आ गया 8.5. सो 8.5% पर एनम इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, आप 20 लाख का 8.5% निकालोगे 1,70,000 आ जाएगा. Is it clear how to find the rate of depreciation? Yes, Yes. sir. We'll stop over here for now. Any doubts, anyone? No, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.